everyone, I'm back again and I hope you guys liked my previous video, and please do share it with all your friends, student friends or college friends, those who are studying, because it's really important for you guys to have a good memory, and to boost your memory is something which you always seek, right? So getting on with that, today I've brought you some properties of the chemical properties of the metals and the non-metals, chapter 3. So first part I've already posted. This is the second part, and I'm just hoping actually to finish the second part so that I can officially finish first, second and 3 chapters of your science NCERT books of 10th class. So let's get started. Here are some points I've already jotted down: the chemical properties of the metals and the non-metals, and this is part 2 because already part 1 I have posted. So सबसे पहले हमारे पास क्या है कि generally they have 1, 2 or 3 electrons in their outermost shell, right? That is what my metals properties are. What are my non-metals properties? They have 5, 6, 7 electrons, which tells us because they have 1, 2, 3 electrons, it is easy for them to lose it. So that's why they lose their outer shell electrons in order to complete octet. And like we have over here, they have 5, 6, 7. That means they are generally tend to accept the electrons which they do in order to complete their octet. That makes our second point, right? Making sense, right? That's the reason I have written examples over there also to make it more clear for you guys. Now third point पे आ जाते हैं. अब हमारे को पता है these people are losing their electrons, which we have learned in the first and the second point, right? So obviously when they are losing their electrons, they become electropositive in nature because they gain positive charge while donating the electrons. Donating और losing electrons is one and the same thing. ठीक है ना? अब non-metals में क्या है? They are gaining the electrons. That's what we have learned in the first and the second point, right? So obviously they will be gaining or they will be getting the negative charge while gaining or accepting the electrons from the others in order to complete their octet. ठीक है? This makes us to move towards our fourth point. तो fourth point कहता है कि electropositive जितने भी metals होते हैं, they forms cations. Okay? So electropositive metals are forming cations. So obviously electronegative metals are going to form the anions. Why? Because they have positive charge and non-metals have negative charge. ठीक है ना? Now moving on to our next point. तो next point हमारा क्या कहता है? They form basic oxides. So metal, whenever they are, whatever metal I have, when they are reacting with the water, they form basic oxides. So what is the basic oxide? भाई NaO, MgO, CaO I was having, and now I am having MgOH2, CaOH2, NaOH. Basic oxides metals are forming. ठीक है? When they are reacting with the water. Now they form acidic oxides. ठीक है? अब when they are reacting with the water, all the non-metals form the acidic oxide. तो कौन सा भाई वो हमारे को H2SO4 मिल जाएगा, H2CO3 मिल जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. समझ में आया चिल्ड्रन? सो टेक अ वेरी गुड लुक एट इट. मैं अभी और भी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको बताने वाली हूँ. स्टे ट्यून्ड. मैंने पढ़ा है कि भाई हमारे को जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, एक्सेप्ट जो है एम्फोटेरिक मेटल्स के. ठीक है ना? तो अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कि कौन से मेटल्स जो है H2O के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के कैसे साथ रिएक्ट करते हैं. तो वाइल स्टार्टिंग दिस हमारे को जो है वो पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज़. तो अगर आपने मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज़ नहीं देखी है जिसमें मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको बताई है, तो आप ज़रूर से वो वीडियो देखिएगा. उसके अंदर मैंने सब कुछ जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ और फंडेज ऐसे प्रॉपर डायलॉग्स, ईजी डायलॉग्स टू रिमेंबर, फ़नी डायलॉग्स टू रिमेंबर, मैंने उसके अंदर सब मेंशन कर रखा है. तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने यहाँ पे फॉर सेक ऑफ रेफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है ना? तो अब हम लोग कोल्ड, हॉट और स्टीम्स के ज़रिए हम लोग पता लगा सकते हैं. बेसिकली यही हमारा 20% ऑफ द चैप्टर है. ठीक है? तो हमारे को पता चल सकता है कि भाई हमारे मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं, मेटल्स हो चाहे नॉन मेटल्स हो, हमारे रिएक्ट कैसे करते हैं. ठीक है ना? तो अब रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमारे को पता है कि भाई कैल्शियम और जो हमारा सोडियम है, पोटाशियम और सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है. तो क्यों बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है भाई? क्योंकि वो जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है. दीज आर द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स. ठीक है? तो अब वो इतने हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होने के कारण वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है, हमारे को क्या मिल रहा है? हमारे को मिल रहा है वायलेंट रिएक्शन. हमारे को मिल रही है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, और वो हाइड्रोजन गैस जब प्रोड्यूस हो रही है तो वो इमीडिएटली कैच कर रही है फायर को. दीज आर द 3 थिंग्स वी आर नोटिसिंग. तो हम लोग उसको कहाँ रखते हैं? वी आर कीपिंग देम और स्टोरिंग देम नॉट इन एयर और नॉट इन वाटर, इन
केरोसिन। सोडियम और पोटेशियम को हम लोग केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। इसके अलावा कौन सा है भाई, कैल्शियम है हमारे पास। तो कैल्शियम जो है वो इतना रिएक्टिव है, इट इज़ ऑल्सो रिएक्टिव बट इट इज़ नॉट एज compared to sodium and potassium. Why? Because whenever it is also producing hydrogen gas and everything is happening over here, but hydrogen gas is not catching fire. Instead वो bubbles form करता है. bubbles form करने की वजह से जो होता है हमारा स्टिक अप हो जाता है, फ्लोट करता है हमारा कैल्शियम और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो स्टिक हो जाती है सरफेस पे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग हॉट वाटर के ऊपर। तो हॉट वाटर में हमारा नेक्स्ट क्या है, हमने सोडियम पढ़ लिया, हम लोगों ने पोटेशियम पढ़ लिया, सोडियम पढ़ लिया, कैल्शियम पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है क्योंकि वो लेसर रिएक्टिव है, ठीक है ना, अब क्योंकि वो लेसर रिएक्टिव है इट कैन नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, इट विल ओनली रिएक्ट विद द हॉट वाटर। ठीक है ना, इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूसिंग H2 गैस एंड इट इज़ ऑल्सो फ्लोटिंग बिकॉज H2 गैस इज मेकिंग अ बबल एंड देन स्टिकिंग टू द सरफेस। अब आ जाते हैं हम लोग, भाई इतना हो गया, ये हमारा मिडिल में आ गया। ठीक है, AlZnFe ये जो होता है ये सिर्फ हमारे स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, हॉट और कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। अब क्योंकि ये कोल्ड के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे, हॉट के साथ भी नहीं रिएक्ट कर रहे, दैट मीन्स दे आर द लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, समझ में आया ना। तो लीस्ट रिएक्टिव मटेरियल है, तो भाई बाकी लोग कहाँ गए, बाकी लोग जो हैं वो वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है ना, तो अब हमारे को पता चल गया कि भाई वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइजेशन उन लोगों का हो रहा है, मतलब वो मेटल ऑक्साइड्स बना रहे हैं। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, तो सिर्फ आउटर लेयर का हो रहा है। ठीक है, इनर लेयर सेफ है तब तक जब तक आउटर लेयर जो है वो झड़ नहीं जाती। आउटर लेयर कम्स ऑफ टिल दैट टाइम, इनर लेयर इज सेफ, इनर लेयर इज प्रोटेक्टेड एंड ओनली आउटर लेयर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए लिख दिया कि ऑल मेटल्स विच आर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन दे आर फॉर्मिंग द मेटल ऑक्साइड्स, है ना, दे आर मोस्टली इनसॉल्युबल इन नेचर, और वो जो है वो जो there are certain who are getting dissolved or partially dissolved in water, they are actually the ones which are forming alkalis. ठीक है, so I hope you guys understood this. जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैं इसमें इंक्लूड कर सकती थी मैंने सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर इंक्लूड करी है। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। 70% ऑफ द चैप्टर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑफ 10th क्लास मैंने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जितना भी 30% रिमेनिंग है वो आपके पास लेके आने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून, इस चैनल पे आपको कई सारी वीडियोज़ मिलेगी। सो गो थ्रू, हेल्प योरसेल्फ and do like, share, comment and subscribe my channel. This is me, Alice Raj, and I am signing off.